میرا نام امجد شاہ ہے۔ 1953 میں ملتان شہر کی ایک مارکیٹ میں ہماری جوتوں کی دکان تھی۔ خاندان مالی طور پر خوشحال تھا۔ دولت جائیداد کی ضرورت سے زیادہ فراوانی تھی۔ گھر میں میرے علاوہ میری چھوٹی بہن اور ایک بھائی تھا۔ میں دونوں سے بڑا تھا۔ مجھے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرا باپ مذہبی قسم کا انسان تھا۔ میں اکثر ہی ملتان سے مال لینے کے لیے راولپنڈی کے کارخانوں سے آتا۔ یہاں میری عیاشی کا سامان بھی ہوتا تھا۔ میرا ایک دوست میرا یہاں پہ سب سے بڑا رازدار تھا۔ میں ایک بار چھوٹی عید کے موقع پر اس کی دکان کے پاس کے لیے جوتے کا آرڈر لے کر گیا۔ سرمد نے حسب معمول میری رات کی رہائش کے لیے اپنے فلیٹ کی چابی دے دی۔ میں نے اسے اپنی ہوس اور شرابی علت کے باعث کہا کہ مجھے دل بہلانے کے لیے کوئی خوبصورت سی لڑکی منگوا دے۔ میں نے کہا سب سے خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے، بھلے پیسے زیادہ خرچ ہو جائیں۔ سرمد نے ایک اڈے پہ فون کیا۔ وہاں پر اس نے کہا کہ میرا ایک خاص دوست آیا ہے، اس کے لیے بالکل ایک خوبصورت اور کچی عمر کی لڑکی چاہیے۔ دوسری طرف سے شاہد نائکا نے بہت زیادہ روپے مانگے، جس پر سرمد نے کہا کہ اس کی ڈیمانڈ پوری ہوگی تو اس نے کہا ہے کہ تو پریوں کی پری بھیجوں گی، ایسی لڑکی ہوگی کہ تمہارا دوست خوش ہو جائے گا۔ فون رکھ کر سرمد نے کہا پہلے تم عیاشی کرنا اور پھر درمیانی شب میں دادیش دینے آ جاؤں گا۔ اس نے آمد کا وقت نہیں بتلایا۔ جاتے جاتے یہ کہہ کر گیا کہ وہ فلیٹ میں موجود چھوٹے فریج میں شراب رکھ کر جا رہا ہے۔ میں لڑکی کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک سوکھا سا آدمی اپنے ہاتھ میں بیڑی پکڑے کھڑا تھا اور ایک چھوٹی قد کی لڑکی تھی۔ اس نے کہا سرکار، نئی پری حاضر ہے، یہ آپ کی عارضی دلہن ہے، یہ بڑی نازک ہے، خیال رکھیے گا اس کا۔ میں نے خوش ہو کر اس شخص کو نوٹ تھمائے۔ اس نے کہا کہ وہ صبح 4 بجے آئے گا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس وجود سر تا پاؤں کانپ رہا ہے۔ پھر وہ اچانک دھڑم سے بیڈ پر گر گئی۔ میں نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہیں زیادہ پریشان نہیں کروں گا۔ میں نے یہ دل روانہ انداز میں کہا تھا، لیکن اس چہرے سے چادر ہٹائی تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ وہ بیچاری تو کچھ زیادہ ہی کم عمر تھی، 13 سال سے زائد نہ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے ابھی جوانی کی دہلیز میں ٹھیک سے قدم بھی نہیں رکھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے پانی کے چند چھینٹے اس کی آنکھوں پہ ڈالے۔ اس کے گورے معصوم چہرے پر بہتے آنسوؤں کی لکیریں صاف محسوس کی جا سکتی تھیں۔ میں نے اسے مقبولی لہجے میں پوچھا رو کیوں رہی ہو؟ میرے اس سوال پر اس نے بچوں کی طرح مزید رونا شروع کر دیا۔ میں دل ہی دل میں اس نائکا کو کوسنے لگا کہ یہ اس نے میرے ساتھ کیا دھوکہ کیا، مجھ سے ٹھیک ٹھاک پیسے لے لیے اور ایک لڑکی کی بجائے بچی بھیج دی۔ میں غصے میں بڑبڑاتے ہوئے خود کہنے لگا میں اس نائکا کو چھوڑوں گا نہیں۔ پھر اس بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو کہ ساتھ والے فلیٹ میں کوئی تمہاری آواز سن لے۔ اس نے مزید روتے ہوئے میرے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگی خدا کے لیے مجھے مت چھونا، میں ایک لاوارث یتیم اور مسکین لڑکی ہوں، میرا نام شائستہ ہے، اس نے خود ہی بتایا اور دوبارہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی میں نے ایک یتیم خانے میں ہوش سنبھالا، نہیں پتا تھا کہ مجھے وہاں کون چھوڑ گیا۔ میں ایک زلزلہ زدہ علاقے سے لائی گئی تھی۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ مجھے اپنے گھر بیٹی بنا کر رکھیں گے، مگر بعد میں مجھے نائکا کے ہاتھ بیچ دیا۔ میں بہت شریف گھرانے کی لڑکی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر گڑ گڑا کر مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا خدا کے واسطے انکل مجھ پر رحم کرو، میں آپ کی بہن بیٹی جیسی ہوں، مجھے جذباتی کرنے کی کوشش نہ کرو اور خود کو میری بہن بیٹیوں سے مت جوڑو۔ لیکن وہ رو رہی تھی اور مجھ سے التجا کر رہی تھی۔ اس کی معصومیت اور بے بسی پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے اس کی بازو پر ٹیکے کے نشان دیکھے تو اس نے کہا کہ نائکا آنٹی کہتی تھی کہ تو کمزور ہو گئی ہے، مجھے طاقت کے ٹیکے لگواتی ہے جبکہ یہ نشے کے ٹیکے تھے۔ انکل مجھے تو لگتا ہے کہ میرا ذہن اب کام نہیں کرتا، لڑکی نے معصومیت سے کہا، جب میں آپ کے پاس لائی گئی تھی تو میرے بازو پر 2 ٹیکے لگائے گئے تھے۔ شکر ہے کہ میں کم شراب پی رہی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اب بھی باقی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں اس لڑکی کو بھگا دوں تو یہ کہاں جائے گی، میں نہیں تو کوئی اور شیطان کامیاب ہو جائے گا، اور دوسرے دن جب سرمد کو پتہ چلے گا کہ میں نے اسے ترس کھا کر چھوڑ دیا ہے اور اس کے گنڈے میرا کیا حال کریں گے، پھر سرمد کے لیے کتنی مشکل پیدا ہوگی۔ میں یہ سوچ رہا تھا اور میرے پاؤں میں پڑ گئی، انکل مجھے چھوڑ دیں، آپ کو مجھ سے کیا ملے گا۔ میں اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا، چپ کر جاؤ،
खुदा के लिए। फिर कुछ देर सोचने के बाद कहा, सच्ची बात है, मैं तुझे यहाँ से भगा नहीं सकता, बस चुप कर जा। खबरदार, अगर तूने अपनी जुबान से मजीद कोई लफ्ज निकाला। मैं सहम गई। मैंने सोचते सोचते अपना सर पकड़ लिया। जहन में सोचने लगा कि अगर इसे भगाऊंगा तो खुद फंसूंगा, फिर सरमद को क्या जवाब दूंगा और वो गुंडे हमारे साथ न जाने क्या सलूक करेंगे। मैंने घड़ी की तरफ देखा और यकीन हो चला था कि इल्तिजाएं रोना धोना ऐसे ही है जैसे दीवार पर सर मारना। मैंने दिलो दिमाग दोनों के दलाइल सुनने के बाद अकल की बात मानते हुए इसके हक में फैसला दे दिया कि मैंने कहा, तुम फटाफट यहाँ से भाग जाओ, जहाँ तुम्हारा दिल करे भाग जाओ। वो चुपचाप वहीं खड़ी रही। जाओ, अब खड़ी क्यों हो? लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? मुझे अपने साथ ले चलो। इसने कहा, मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊं? तुमने मुझे एक बहन कहा है, गैरत से जिंदगी गुजारने का एक मौका दिया है, मैं कैसे अपने भाई को खतरे में छोड़कर चली जाऊं? मैंने इसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा कि इस पहले के मेरे अंदर का सोया हुआ शैतान जाग जाए, यहाँ से भाग जाओ। मैं क्या कह रहा हूँ और तुम नहीं जा रही। मैंने फैसला किया है, जहर खा के मर जाऊंगी या नाइला आंटी के पास चली जाऊंगी ताकि तुम्हारी जात को कोई नुकसान न पहुंचे। इसने जज्बाती लहजे में कहा। मैंने कहा, ऐसी बातें मत करो, सरमद किसी भी लम्हे आ सकता है, अगर वो आ गया तो फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, चली जाओ यहाँ से। मेरे बार बार इसरार करने पर वो जाने के लिए आमादा हो गई। मैंने कहा, मैं तुम्हें इस अंधेरी रात के हवाले करता हूँ, वो जरूर तुम मजलूम पर रहम करेगा। इस वक्त ना जाने कौन सी रूहानी ताकत मुझ गुनहगार को इस नेकी पर मजबूर कर रही थी। ये कहकर वो मुझसे लिपट कर रोने लगी। बोली कि मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। भाई, मेरे सर पर बैंड समझकर हाथ फेर दो। मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुमसे हवस की आग बुझाना चाहता था। मैं एक बदकार गुनहगार इंसान हूँ, खुद को इस काबिल नहीं समझता कि तुझे बहन कहकर तेरे सर पर हाथ फेरूं। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। मैंने इस हाथ पर 20 रुपए रखे। जल्दी से चली जाओ, जहाँ रोशनी नजर आए इसी रास्ते चली जाना। खैर, सरमद के आने का वक्त हो रहा था। मैंने फ्लैट के दरवाजे से जबरदस्ती इसे बाहर धकेल दिया। इसे भगाने के बाद मैं सोच रहा था कि मैं सरमद को क्या झूठ बोलूंगा। मैंने अपने चेहरे पर परेशानी के तासुरात नुमाया कर लिए। सरमद आया तो मैंने परेशान होकर कहा, यार, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। वो लड़की मुझे जख्मी करके भाग गई है। नायका ने मेरे साथ धोखा किया है। मेरी बात सुनकर सरमद भी परेशान हो गया। बोला कि इस लड़की का हमें पीछा करना चाहिए, इसे ढूंढना चाहिए, वरना नायका के गुंडे हमारा बुरा हाल कर देंगे। खैर, फिर वैसा ही हुआ। लड़की तो कहाँ मिलनी थी। इन लोगों ने कहा कि तुम दोनों को हर सूरत में लड़की वापस करना होगी, वरना तुम्हारे साथ कुत्तों से भी बुरा सलूक होगा, और अगर लड़की नहीं दी तो हम तुम्हारे घर की औरतों को उठा लेंगे। फिर इसी तरह के कुछ संगीन हालात पैदा हुए तो मैं अपने शहर भाग गया। घर आया तो अब्बा ने माल के बारे में पूछा। मैंने कहा कि रास्ते में डाकुओं से पाला पड़ गया था। अब्बा ने मेरी बात पर यकीन कर लिया। उन्होंने शुक्र किया कि मेरी जान बच गई, लेकिन इन्हें मालूम था कि मैं किस चक्कर में फंस गया हूँ। मेरे दिल में भी तड़का लगा रहता कि नायका का बदमाश ईदी, जिसके बारे में मशहूर था कि वो अपने कोठे से गुम होने वाली एक लड़की के पीछे पागल हो जाता है, इसे जमीन की तह से भी निकाल लाता है। हर लम्हे मुझे यही लगता कि वो आ जाएगा और मेरी बहन शाइस्ता को उठा के ले जाएगा। 3 रोज सुकून से गुजरे थे। चौथे दिन मैं खौफ से अपने घर में दुबका बैठा हुआ था कि हमारी दुकान से एक नौकर आया। वो बहुत घबराया हुआ था। कहने लगा, सरमद नामी एक आदमी, इसके साथ 2 खतरनाक गुंडे भी आए हैं, साथ में एक औरत भी है। बड़ा रोला पड़ गया है, जल्दी से दुकान पर आइए। इसकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे पांव तले से जमीन खिसक रही हो। बहरहाल, जब मैं बाजार पहुंचा तो हमारी दुकान के पास हंगामा लगा हुआ था। कुछ लोगों ने मेरी शक्ल देखी तो शोर सा मच गया। क्या आ गया है? मजमे को चीरते हुए मैं दुकान में दाखिल हुआ। सरमद 2 गुंडों और एक हराम सी औरत के साथ वहाँ मौजूद था। सरमद ने इस औरत से कहा कि इसी ने शाजिया को भगाया है ना? नाइला आंटी यही बंदा है। और फिर इस दूसरे शख्स ने भी नाइला आंटी से कहा, जो फ्लैट में तुम्हारे लिए लड़की लाया था। अब्बा ने मुझसे पूछा, ये लोग कौन हैं? इतने में दुकान में खड़े गुंडे ने मेरी कमर पर जोरदार थप्पड़ मारा। वही लड़की जिसे तू वरगला कर फ्लैट में बुलाया था। नाइला आंटी ने ड्रामाई अंदाज में आंसू बहाते हुए कहा, ये कमीना डॉक्टर अख्तर की बच्ची का आशिक था। डॉक्टर साहब अपनी फैमिली समेत अमेरिका मुंतकिल हो गए, शाजिया को हमारे पास छोड़ गए थे। इसने इस बच्ची को न जाने किस तरह अपने जाल में फंसाया और जूते के कारखाने के मालिक सरमद के साथ मिलकर
फ्लैट में बुला लिया। इसके बाद न जाने कहाँ भगा कर ले गया। नायिका ने बड़ी खूबसूरती से कहानी करते हुए कहा, बस फिर क्या था, हमारी जो बदनामी होनी थी वो तो हो गई थी। अब्बा के सामने भी मेरी हकीकत खुल गई। फिर मजबूरन पड़ोसन के तजर्बाकार जानने वालों को बुलाया गया। वहाँ एक बुजुर्ग जिनकी मैं बहुत इज्जत करता था, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा असल बात क्या है, तुम हमें बताओ। मुझे असल बात बतलाने में बड़ी शर्म महसूस हो रही थी। वहाँ मौजूद अब्बा के एक दोस्त ने कहा, हकीकत बताने से शर्माओ नहीं, इस लड़की में सारी हकीकत बता दो। खैर बड़ी मलामत के बाद मैंने इस लड़की के बारे में वहाँ मौजूद सब लोगों को बता दिया। कुछ लोग तो कानों को हाथ लगा रहे थे। खैर इसके बाद अब्बा ने मुझे अपनी जायदाद, दुकान वगैरह से आग कर दिया। मैं रुतवाए ज़माना होकर दर्द की ठोकरें खाता रहा। पेट तो पालना था। एक दोस्त की टैक्सी कमीशन पर चलाना शुरू कर दी, जो एक पोटड़ी में रहता था। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से गुजर रहा था। जब मैं 50 साल का हो गया, इत्तेफाक से मैं एक रोज मुल्तान शहर के एक इलाके में अपनी टैक्सी में बैठा सवारियों का इंतजार कर रहा था। मेरे पास एक बूढ़ा शख्स आया। इसने कहा, मुझे एयरपोर्ट जाना है। थोड़ी देर बाद इसके साथ एक लड़की भी आ गई। ये बड़ी ही खूबसूरत और मॉडर्न लड़की थी, जबकि इसके पीछे एक बुढ़िया भी थी। कोठी के 2-3 मुलाजम लड़के भी नजर आ रहे थे। लड़की ने सबको दुआ सलाम के बाद खुदा हाफिज कहा। बुढ़िया ने इसके सर पर हाथ फेर कर कहा कि लंदन पहुंचते ही फोन कर देना। मैंने शीशे में लड़की को देखा तो मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। शायद मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी, जबकि मेरे बूढ़े जहन में एक ख्वाबीदा सी माजी की याद जागने की कोशिश कर रही थी। इसे कहीं देखा है। मेरे जहन में ख्याल आया, ये कौन हो सकती है और ये मुझे क्यों देख रही है। रब अचानक मेरे जहन में धमाका सा हुआ कि ये तो वही लड़की है, शाजिया। मगर ये इस मकाम तक कैसे पहुंची। मुझे इसे देखकर खुशी भी हुई और हैरत भी। मैंने मुस्कुराते हुए इसे देखा। अंकल, आप किसी जमाने में जूतों का कारोबार करते थे ना? हाँ शाजिया, तुम अंकल को जानती हो? ये तुम्हारे कैसे जान पहचान वाले हैं? इसके साथ बैठे बूढ़े ने कहा, जी एक दफा मैं और सिद्रा इनकी दुकान से जूते खरीदे थे। लड़की ने कहा और फिर अपने होंठों पर उंगली रखकर इशारा किया, जैसे कह रही हो कि इन बुजुर्ग को कुछ ना बताना। मैं टैक्सी चलाते चलाते माजी के दिल खराश यादों में खो गया था। लड़की के बुजुर्ग के साथ गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा था कि वो डॉक्टर बन गई। फिर थोड़ी देर बाद बुजुर्ग को किसी काम के सिलसिले में टैक्सी से निकल कर बाहर जाना पड़ा तो शाजिया बच्चों की तरह रोने लगी, जैसे वो मेरे फ्लैट में इस दिन अपनी इज्जत बचाने के लिए रोई थी। खुदा ताला ने मुझे इस रात के अंधेरे दारुल अमान में पहुंचा दिया था, जहां न सिर्फ मुझे अमान मिल गया बल्कि इन साहिब हैसियत अंकल ने मेरी परवरिश की, मुझे डॉक्टरी की तालीम दिलवाई। फिर डॉक्टर बनने के लिए अपनी एक टांग से अपाहज बेटे से मेरी शादी भी करवा दी। मैं इनकी बहू हूँ, लंदन में अपने शोहर के पास जा रही हूँ। लड़की की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा मैं तो चलूँ तुम्हें फ्लैट से भगाने के जुर्म में खुशहाल जिंदगी से एक टैक्सी ड्राइवर बन गया, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। ये मेरी माजी की ही सजा है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी नेकी रायगा नहीं गई। इसने मुझसे कहा कि मैं इस भयानक रात का जिक्र किसी से नहीं करूं, वरना वो अपने ससुर की नजरों में गिर जाती। कहने लगी, आज मैं जिस मकाम पे खड़ी हूँ ये सब आपकी बदौलत है। फिर जाते जाते इसने मुझे अपना हासिल का नंबर दिया और कहने लगी, मुझसे राब्ता करना, मैं आपको वहाँ बुलाऊंगी। आपको जितने रुपए चाहिए मुझे लिखना, आपकी मदद करके मुझे खुशी होगी। जाते ही वो पलट पलट कर मुझे देखती रही, ताहम मैंने इससे किसी किस्म का राब्ता करना मुनासिब नहीं समझा। मेरे लिए यही खुशी बहुत थी कि मुझ गुनाहगार और बुदकार की एक नेकी से किसी की जिंदगी संवर गई।